बच्चे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंस. Expense are incurred in dissolving the firm. These expenses are incurred in dissolving the firm by selling the assets and paying the liabilities. These expenses may be paid as remuneration to the partner to carry out dissolution. Dissolution का पूरा work करने के लिए sometime the firm is paying the remuneration to the partner for dissolving the firm to do all the works relating to dissolving the firm. Those expenses are known as realization expense, and this will come debit to realization account, debit side of realization account. First, suppose a salary paid to partner and realization expense, a salary and realization expense paid to partner are borne by firm, right? तो ये firm bear कर रही है realization account debit to concerned partner capital account, क्योंकि ये किसको पे हो रही है? पार्टनर को. Second, realization expenses are borne and paid by firm. बियर भी फर्म कर रही है और पेड भी फर्म कर रही है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सी इन द फर्स्ट केस, if we will discuss about for the detail point, a partner is paid remuneration or a salary and realization expense are borne by the firm. इसका क्या मीनिंग है कि जो हम सैलरी या रेमुनरेशन की पेमेंट पार्टनर को कर रहे हैं उस पे रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो इंक्लूडेड है, राइट? और इन दिस सिचुएशन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म. फर्म उसको बियर कर रही है. इट मीन्स कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप इसको शो करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकेंड केस में हमने डिस्कस किया है रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न एंड पेड बाय फर्म. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर. पार्टनर पे कर रहा है इसको, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो ये देखिए, अगर बोर्न बाय फर्म है और यहाँ भी बोर्न बाय फर्म है और पेड बाय पार्टनर है, इस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा होगा. अब सपोज पार्टली जो है वो फर्म ने पेड किया और पार्टली कैपिटल पार्टनर ने पे किया. तो जो फर्म ने पे किए हैं रियलाइजेशन टू बैंक और जो पार्टनर ने पे किए पार्टली टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. वो डिवीजन हो जाएगी जितना जितना अमाउंट उन लोगों ने पे किया है. तो मेनली जो है आपके केस में जो डिसोल्यूशन में ग्रेड 12th में मेनली ये केस कंसीडर होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस विच आर बोर्न एंड पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. द केस नंबर सेकंड इज ऑलमोस्ट डील इन ऑल द न्यूमेरिकल्स, राइट? तो वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स before starting the detailed numerical, because this is the one step of the complete numerical to deal with the realization expenses. Note down this on your notebook so that we will discuss the other topic. Hurry up बच्चे. Now बच्चे open page number 8.3 from T.S. Garewal. Read illustration number 1. The firm of XYZ was dissolved on 1st April 2020. Y demands that his loan of 25,000 be paid by the firm before the payment of capitals of the partner. But X and Z demanded that capital be paid before the payment of loan by Y. Who is correct and why? देखो, इस केस के अंदर आप पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट देंगे, देन पार्टनर के कैपिटल की. तो इट मीन्स Y इज करेक्ट because according to section 48 of Indian Partnership Act 1932, loan by partner is paid before the payment of partner's capital. I hope this point is clear to you. Already discussed, right? One more point we will discuss. A and illustration 3, A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Mrs. A has given a loan of rupees 20,000 to the firm, and the firm had also taken a loan of 10,000 from B. Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm and firm has also taken 10,000 from B. Right? Mrs. A partner नहीं है, B partner है. Right? The firm was dissolved, asset realized 25,000. लोन लिया 30,000 का, asset realize हुई है 25,000 की.
State the order of payment of Mrs. A's loan and B's loan with the reason if there were no other creditor of the firm. देखो बच्चे यहाँ पर दो ही चीजें हैं, एक तो हमने मिसेस ए का लोन देना है, एक पार्टनर बी का लोन देना है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिसेस ए जो है वो थर्ड पार्टी है. आपके पास जो एसेट रियलाइज्ड हुई है वो 25,000 की है. तो मिसेस ए लोन ऑफ ₹20,000 being the outside party's debt will be paid before the repayment of B's loan. B will be paid up to the available cash that is ₹5,000. तो मिसेस बी की जो B will be paid up to अवेलेबल कैश, कितने कैश तक वो मिसेस बी पे करेगी को पे किया जाएगा 5,000 तक, क्योंकि आपके एसेट रियलाइज हुई है 25 की, जिसमें से 20,000 का आपने मिसेस ए का लोन दे दिया है. अब बी पार्टनर है और बी का कितना दे पाएंगे आप, ओनली जितना आपके पास रिमेनिंग कैश है, दैट इज 5,000. और तो पार्टनर बी को आप कितना पे करेंगे, ओनली 5,000 आउट ऑफ 10,000. गॉट माई पॉइंट? Now after this we will discuss 1 and 2 cases of workman compensation reserve. Because all this point will be considered at the time of complete numerical. X and Y they are two partner 3:2. Journal entry under the following condition. बच्चे अगर तो क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा. इफ देयर इज नो क्लेम, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. फर्स्ट केस में देखो बच्चे, workman compensation reserve in balance sheet was ₹75,000. It means there is no liability, no claim. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशो 3:2 में आप 75,000 को डिवाइड कर देंगे. केस नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. 75,000 को आपने 3:2 में डिवाइड कर दिया. केस 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, लायबिलिटी फॉर इट 35,000. अब आप क्या करेंगे, 35,000 की लायबिलिटी है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आप 35,000 रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो. 60,000 में से 35,000 आपका ट्रांसफर हो गया. हाउ मच लेफ्ट, 25,000. तो 25,000 बचा क्या, जिसके लिए कोई क्लेम नहीं है, वो आप क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. Now we will discuss the pointer loan by a partner. Loan by a partner to the firm is not the outside liability, क्योंकि पार्टनर इनसाइड है, वो आउटसाइड थर्ड पार्टी नहीं है. बट लोन कभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. इट इज नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट. ये कभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, राइट, बिकॉज इट इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी. आपने जब आउटसाइड लायबिलिटीज पेड करते तो उससे पहले आप कैपिटल नहीं दोगे, बिफोर द कैपिटल, राइट, क्या पे करना पड़ेगा, पार्टनर का लोन टू पार्टनर टू बैंक और कैश. अब लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को दिया है तो दैट इज वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू लोन टू पार्टनर अकाउंट कर देंगे आप. जितना पार्टनर ने लोन लिया है वो उसकी कैपिटल में से आप कवर कर लेंगे. तो इट मीन्स इट विल कम डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इसमें आप पेमेंट्स करेंगे, राइट, जितनी भी लास्ट में अमाउंट ड्यू हो जाएगा वो आप पे कर देंगे. उसमें से कोई भी बैलेंस आप कैरी डाउन नहीं रखेंगे क्योंकि आप बुक्स को क्लोज कर रही हैं. सपोज देयर आर करंट अकाउंट बैलेंसेस, राइट, इन केस डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन केस डेबिट बैलेंस इन ए करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट. इन केस क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो बैलेंस है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की सेम साइड में आप ट्रांसफर करेंगे. गॉट माई पॉइंट? आफ्टर दिस वी विल डिस्कस ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस. जितने भी रिजर्व्स है बेटे, या जनरल रिजर्व हो गया है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, दिस विल कम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. और जितने भी लॉसेज हैं या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इट विल कम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, राइट. लॉसेज सारे पार्टनर कैपिटल की डेबिट में आती है. अब लास्ट में आया तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट निकलेगा या लॉस. प्रॉफिट है तो पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में, और अगर लॉस है तो पार्टनर कैपिटल की डेबिट में. तो इस वजह से आप फाइनल सेटलमेंट कैसे करोगे पार्टनर की, जो भी अमाउंट है, राइट, उसको आप बैंक के अंदर टू बैंक और या टू कैश से जो है वो अकाउंट को क्लोज करोगे. फॉलो माई पॉइंट?
तो बच्चे आपने क्या करना है, हर पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है. फर्स्टली यू विल मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, देन यू विल मेक पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश और बैंक अकाउंट. अब जितनी भी पेमेंट्स है वो सारी सेटल होगी. तो बैंक और कैश अकाउंट की जो दोनों साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, द टोटल विल बी इक्वल. इफ द टोटल विल बी इक्वल, इट मीन्स दैट आवर न्यूमेरिकल इज राइट. फॉलो माय पॉइंट.